لائلپور یا فیصلاباد کے یہ باغی یا ریبلز کون تھے؟ انگریز سرکار کے خلاف بغاوت کرنے والے بڑے ناموں کا تعلق اس شہر سے کیوں تھا؟ کیا وجہ تھی کہ یہ شہر پنجاب میں چلنے والی بڑی تحریکوں کا مرکز رہا؟ ان کرداروں اور تحریکوں کا اس شہر سے کیا کنیکشن تھا؟ اس شہر کی وہ تاریخ جس پر بہت کم بات ہوتی ہے، اور جان کر آپ حیران ہوں گے اس ویڈیو میں۔ ویسے تو پاکستان کے بڑے شہر فیصل آباد، جس کا نام کبھی لائلپور ہوا کرتا تھا، اس کی وجہ شہرت اس کی ٹیکسٹائل ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ علاقہ مشہور ہے۔ شہنشاہ قوالی نصرت فتح علی خان کا تعلق یہاں سے تھا، پھر یہاں کے حصے مزاح نے کچھ بڑے بڑے فنکار پیدا کیے۔ پاکستان میں جب ہاکی کا عروج تھا تو زیادہ تر پلیئرز اس کے آس پاس کے علاقوں سے ہی آتے تھے۔ ہاکی لیجنڈ شہباز سینئر کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے۔ یہ شہر زیادہ پرانا نہیں، اس لیے اکثر اس کی تاریخ اس کے آس پاس کے علاقوں کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے۔ یہ علاقے بہت پرانے ہیں۔ ان علاقوں کو کبھی ساندل بار کہا گیا، کبھی پکی ماڑی اور کبھی لائلپور کے نام سے جانا گیا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ پنجاب کی تاریخ میں کچھ بڑے نام جنہوں نے انگریزوں کے خلاف یہاں مزاحمت کی، ان کا تعلق انہی علاقوں سے تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسٹیٹس کو کے خلاف مزاحمت کی یا پھر برٹش دور میں پنجاب میں چلنے والی کچھ بڑی مزاحمتی تحریکوں کو لیڈ کیا۔ ان میں رائے احمد خان کھل، اجیت سنگھ، بھگت سنگھ اور سندر سنگھ لائلپوری جیسے نام شامل ہیں۔ اس ویڈیو میں اس شہر کے ان ریبلز اور ان کی تحریکوں کو ڈسکس کریں گے۔ ان لوگوں اور تحریکوں کا فیصل آباد سے کنیکشن کیا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس علاقے سے ایسے کردار سامنے آتے رہے۔ پنجاب میں ریزسٹنس کی تاریخ اس علاقے کی تاریخ سے جڑی رہی ہے۔ یہ علاقہ ساندل بار کا تھا اور رچنا دواب میں شامل تھا۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے یہ علاقہ بار کا علاقہ تھا اور پنجاب کی باروں کا ایک اپنا کیریکٹر تھا۔ یہ پنجاب کا وائلڈ ویسٹ تھا۔ شہر بننے سے پہلے یہاں ساندل بار کے ان علاقوں میں گھنے جنگل تھے، اور یہ وہی جنگل تھے جن کا ذکر پنجاب کی مرزا صاحبہ جیسی لوک داستانوں میں ہوتا رہا ہے۔ ویسے تو پرانے وقتوں میں جنگل اور آؤٹ لا کا ایک کنیکشن بھی ہوتا تھا۔ یہ آؤٹ لاز چاہے کسی بھی سرکار کے خلاف ہو، جنگل انہیں چھپنے کی جگہ دیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نظام لوہار جیسے کردار چھانگا مانگا کے جنگلوں کے ساتھ جڑ گئے، اور سکھ جتھوں نے جب مغلوں کے خلاف مزاحمت کی تو وہ بھی لاکھی کے جنگل میں چھپ جاتے تھے، جو کہ بھٹنڈا اور کوٹ کاپور کے درمیان تھا۔ اس لیے پنجاب میں ریزسٹنس کی تاریخ ان جنگلوں کی تاریخ کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑی رہی۔ انہی کرداروں کو پرانی لوک داستانوں اور قصوں میں ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا تھا، لہٰذا یہ مائنڈ سیٹ یا روایت ان علاقوں میں اس بار اور جنگل کی وجہ سے موجود تھا، اور فیصل آباد یا اس کے آس پاس کے رہنے والوں میں کہیں نہ کہیں ریزسٹنس کا یہ کیریکٹر پایا جاتا تھا۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے ساندل بار کے ایک اور لوکل لیجنڈ دلہ بھٹی کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی تھی، جس نے مغلوں کے خلاف بغاوت کی تھی اور اسے پنجاب کا رابن ہوڈ کہا جاتا تھا۔ دلہ بھٹی کا خاندان آج کے فیصل آباد کے قریب پنڈی بھٹیاں کے علاقے میں سیٹل تھا۔ اس کے باپ کا نام فرید اور دادا کا نام ساندل تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کے دادا کے نام پر ہی بار کا نام ساندل بار تھا، اور یہ علاقے موسٹلی فیصل آباد کا حصہ ہیں۔ مغلوں کے ریونیو سسٹم اور کسانوں کی ایکسپلوئٹیشن پر دلہ بھٹی نے مقامی قبائل کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر مغل بادشاہ اکبر کے خلاف اس وقت ریزسٹنس شروع کی جب مغل سلطنت اپنی پیک پر تھی۔ مغل فوج نے ایک لڑائی میں دلہ بھٹی کو گرفتار کر کے شہنشاہ اکبر کے سامنے پیش کیا اور سرنڈر پر مجبور کیا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد دلہ بھٹی کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ دلہ بھٹی نے جو روایت ڈالی وہ یہاں انگریزوں کے آنے کے بعد بھی جاری رہی۔ دلہ بھٹی کے بعد پنجاب کے انہی قبائل اور ساندل بار کے انہی علاقوں نے مغل سلطنت کی ڈکلائن کے دوران ریزسٹنس کے ایک اور ہیرو کو جنم دیا، جس کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات ہوگی۔ اس ہیرو کا نام رائے احمد خان کھل تھا، اور یہ وہ بغاوت تھی جس نے انگریز سرکار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ ریزسٹنس صرف رائے احمد خان کھل کی بھی نہیں تھی، بلکہ پنجاب کے مختلف قبیلوں اور برادریوں کی تھی جنہوں نے ان کے ساتھ بغاوت کی۔ رائے احمد خان کھل جھامرا میں پیدا ہوئے تھے، جو فیصل آباد کی تحصیل تاندلیاں والا کا حصہ ہے۔ ان کا خاندان ذمہ دار تھا اور یہ قبیلہ ساندل بار کے علاقے میں سیٹل تھا۔ سعادت علی خان کھل کو یہاں بادشاہ اورنگزیب کے زمانے میں جاگیر ملی تھی، جس کے بعد یہ قبیلہ یا برادری یہاں آباد تھی۔ رائے احمد خان کھل کو رائے صالح کھل کے بعد
खरल कबीले का सरदार बनाया गया। पंजाब में अंग्रेज की सरकार नई नई बनी थी और दूसरी एंग्लो सिख वॉर के बाद अंग्रेज अभी इन इलाकों को कंट्रोल में ला रहे थे। ऐसे में 1857 में जब जंग आज़ादी शुरू हुई और बहादुर शाह जफर को फिर से तख्त पर बिठाने की कोशिश की गई तो जल्द ही यह लड़ाई मुख्तलिफ शहरों तक फैल गई। म्यूटिनी रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमद खान खरल दिल्ली और हांसी में मज़ाहमतकारों और मुगल बादशाह से मुस्तकिल राब्ते में थे। जून 1857 की एक सुबह गोगेरा के एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर लियोपोल्ड फिट्स जेराल्ड बर्कले ने इलाके के सरदारों को बुलाया। इस मीटिंग में अहमद खान खरल और सारंग खान भी आए। बर्कले का मकसद यहाँ के सरदारों की सपोर्ट लेना था। उसने बगावत से निपटने के लिए घोड़े और जवान मांगते हुए कहा कि वो बदले में सरदारों के लिए लंदन से अहम सरकारी एजाज या साइटेशन की सिफारिश करेंगे। कुछ रवायतों के मुताबिक बर्कले और अहमद खान खरल के दरमियान एक घोड़ी जो कि बर्कले को पसंद थी उस पर पहले से कुछ टेंशन चल रही थी, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। बहरहाल जो भी बात हुई, इस मीटिंग के बाद अहमद खान खरल कंपनी की हिमायत के लिए तैयार ना हुए और उन्होंने बर्कले को वो तारीखी जवाब दिया कि हम अपना घोड़ा, औरत और ज़मीन किसी के हवाले नहीं करते। बर्कले इन सरदारों की हिमायत तो हासिल नहीं कर सका, लेकिन फिर हालात ख़राब होते चले गए। राय अहमद खान खरल ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर गोगेरा जेल तोड़ने की कोशिश की। 26 जुलाई 1857 की रात अहमद खान खरल के साथियों ने कैदियों को फरार करवाने की कोशिश की, लेकिन जेल के अमले ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। बरतानवी रिकॉर्ड के मुताबिक इस कार्रवाई में 17 कैदी हलाक और 33 जख्मी हुए, जबकि 18 कैदी भागने में कामयाब हो गए। राय अहमद खान खरल ने अब अंग्रेज सरकार के खिलाफ बाकायदा मज़ाहमत शुरू कर दी और मुख्तलिफ कबीले भी उनका साथ दे रहे थे। मज़ाहमत के अहम इलाकों में लायलपुर या फैसलाबाद के करीब लखू के पिंडी शेख मूसा, मोहम्मदपुर, हड़प्पा, चीचावतनी, झुल्ली फतेहाना और झामरा थे। यहाँ के दीगर कबाइल जोइये, काठिए, वट्टू, फतेहाने वो भी इस बगावत में शामिल थे। ये गुरीला तर्ज की जंग थी जिसमें राय अहमद खान खरल और उनके साथियों ने अंग्रेज सरकार के पोस्ट ऑफिसेज और पुलिस स्टेशन पर हमले शुरू किए। ज़रा जंग के गैजेटियर 1883 से पता चलता है कि इस लड़ाई के नतीजे में झंग और लाहौर का राब्ता मुनक़ता हो गया था। दूसरी तरफ अंग्रेज फौज राय अहमद खान खरल को हर तरफ ढूंढ रही थी। राय अहमद खान खरल और उनके साथी गशकोरी के करीब जंगल में चले गए। इसी दौरान अंग्रेज़ों को राय अहमद खान खरल की मुखबरी हुई और फौज ने उस जगह का मुहासरा कर लिया। यहाँ अंग्रेज़ फौज और राय अहमद खान खरल के साथियों में शदीद लड़ाई हुई, लेकिन इस लड़ाई में बिलाखिर राय अहमद खान खरल, उनका भतीजा मुराद खरल और सारंग खरल शहीद हो गए। राय अहमद खान खरल की उम्र उस वक्त 83 बरस थी। इस लड़ाई के बाद बर्कले का अंजाम भी अच्छा ना हुआ। अगले रोज जब बर्कले ने जंगल में पेशकदमी की तो राय अहमद खान खरल के साथियों के हाथों मारा गया। ये मुराद फतेहाना था जिसने नेज़े से उसका काम तमाम कर दिया। एडी एजाज की किताब में एक ढोले में मुराद फतेहाना मारने से पहले बर्कले से कहता है कि हमारे साथ तो जो हमारी किस्मत में है वो होकर रहेगा, लेकिन तुम कभी गोगेरा में अदालत नहीं लगा सकोगे। मकामी रवायात के मुताबिक इस दौरान इलाके के सैकड़ों लोगों को फांसियां दी गई, तोपों का निशाना बनाया गया और बतौर सजा काला पानी भी भिजवाया गया। गोगेरा से फैसलाबाद जाती सड़क पर तांदियावाला के करीब झामरा है, जहां पर अब राय अहमद खान खरल का मज़ार भी है। पंजाब पर कब्जे के बाद अंग्रेज सरकार की यहाँ गिरफ्त मजबूत होती चली गई। किसी भी किस्म के रेजिस्टेंस से निमटने के लिए यहाँ पुलिस का एक सख्त निज़ाम लाया गया। फिर कैनाल कॉलोनी सिस्टम आने से ना वो कबाइल रहे और ना ही पहले जैसा जंगल। यहाँ चनाब कॉलोनी बनी, फिर लायलपुर का शहर बसाया गया जो कि इन इलाकों का सेंटर बन गया। इन इलाकों में लायलपुर का शहर कैसे बना, इस हवाले से मैं फैसलाबाद की तारीख पर एक डिटेल्ड वीडियो कर चुका हूँ। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक नीचे मौजूद है। अब आउटलॉज का दौर खत्म हो चुका था। ये जंगल तो शहर बन गए, लेकिन ऐसा लगता था कि यहाँ के कल्चर से अभी भी रेजिस्टेंस खत्म नहीं हुई। राय अहमद खान खरल की बगावत के 50 साल बाद एक और ऐसी आवाज़ उठी जिसने फिर से ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया। इस मर्तबा ये तहरीक किसानों की थी। जब ये इकट्ठे हुए और नारा लगा, पगड़ी संभाल जट्टा, इस नारे की गूंज बरतानिया की पार्लियामेंट में भी सुनाई दी। इस तहरीक का आगाज भी लायलपुर से जुड़ा है और इसके मेन लीडर अजित सिंह का नाम भी। यह तहरीक पगड़ी संभाल जट्टा क्या थी, इसका आगाज लायलपुर से कैसे हुआ और अजित सिंह का इसमें क्या किरदार था, इस पर बात कर लेते हैं। अजित सिंह आज़ादी के हीरो भगत सिंह का चचा भी था, लेकिन बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। भगत सिंह की आगे चलकर मजीद भी बात होगी, लेकिन इंटरेस्टिंगली
इस तहरीक की पीक भी 1907 ही थी, जो कि भगत सिंह की पैदाइश का साल भी था। एक राइटर स्वान सिंह, जिन्होंने किताब पाथ टू रेवोल्यूशन लिखी है, उनका यह कहना है कि अजित सिंह के वालिद और भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह का खानदान 19वीं सदी के आखिर या 20वीं सदी के शुरू में लायलपुर के करीब एक गांव बंगा चक नंबर 105 में मूव कर गया था। 19th सेंचुरी के आखिर में अंग्रेजों ने वेस्ट पंजाब के इन इलाकों में कैनाल कॉलोनी सिस्टम मुतारिफ करवाया। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों से किसानों को लाकर इन नई कॉलोनीज में आबाद किया गया। किसानों ने इन ज़मीनों पर मेहनत की और जल्द ही ये आबाद हो गई। सरकार ने उस वक्त साथ ही कुछ नए कवानीन लाने का भी फैसला किया। इनमें लैंड एलियनेशन एक्ट, पंजाब लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और पंजाब प्री एम्पशन एक्ट शामिल थे। इन कवानीन के खिलाफ किसानों में खासा गुस्सा था और उन्होंने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में 21 जनवरी 1907 को लायलपुर के करीब सांगला हिल में 3000 किसानों का इज्तिमा हुआ, जिसमें हुकूमत के खिलाफ तकरीरें हुई। फिर इसके बाद किसानों का अगला इकट्ठ मार्च 1907 में लायलपुर में हुआ। लायलपुर चिनाब कॉलोनी का हिस्सा था, जो कि इस कैनाल कॉलोनी सिस्टम की सबसे बड़ी कॉलोनी थी। यहाँ हजारों किसान रैली में इकट्ठे हुए। इस रैली को कवर करने के लिए उस वक्त के सहाफियों की भी एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी। इस यादगार किसान रैली में झंग स्याल के एडिटर बांके दयाल, जो पुलिस की नौकरी छोड़कर इस तहरीक में शामिल हुए थे, उन्होंने अपनी एक शोहराए आफाक नज़म पगड़ी संभालो जटा सुनाई। जब उन्होंने ये नज़म पढ़ी तो समा बन गया। इस जलसे में पढ़ी जाने वाली ये नज़म इतनी मशहूर हो गई कि इस किसान तहरीक का मोटो बन गई। इसी नज़म की वजह से इस तहरीक का नाम पगड़ी संभाल जटा पड़ गया। यूँ लायलपुर इस तहरीक का स्टार्टिंग पॉइंट था, जो जल्द ही पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फैल गई। इन किसानों को इकट्ठा करने वाला और इस तहरीक को लीड करने वाला सरदार अजित सिंह ही था, जिन्होंने लाला लाजपत राय के साथ इसे लीड किया। 1906 में इससे पहले अजित सिंह ने एक अंडरग्राउंड सोसाइटी, भारत माता सोसाइटी या अंजुमन मुहिब्बान वतन की बुनियाद भी रखी थी और अंग्रेज मुखालिफ किताबें शाया करनी शुरू कर दी थी। अजित सिंह ने ही किसानों को इन कवानीन के आने के बाद ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और इन जलसों का आगाज किया। अजित सिंह इन जलसों में बड़ी जज्बाती तकरीरें करता था। लोग जलसों में जोश और जज्बे से इसके हुकूमत मुखालिफ नारों का जवाब देते और हर तकरीर के बाद तालियों की एक गूंज होती और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते। इन जलसों से अजित सिंह की मकबूलियत बढ़ती जा रही थी और जलसे बड़े होते जा रहे थे। अजित सिंह हर जलसे में अपनी तकरीर में कहता कि अंग्रेज़ां नूं सोटे नाल कुटांगे। अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ यह तहरीक पंजाब के तमाम बड़े शहरों में चली। 1 मार्च से 1 मई तक रावलपिंडी, लाहौर, लायलपुर, फिरोजपुर, अमृतसर, बटाला और दूसरे बड़े शहरों में हुकूमती रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 28 जलसे हुए। बरतानवी हुकूमत को लगने लगा था कि हालात अब कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। इस मौके पर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर डेंजल चार्ल्स एबिस्टन ने वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो को लिखा कि पंजाब की सूरत हाल बहुत मुश्किल हो गई है। उसने लायलपुर, मुल्तान और दीगर शहरों से CID रिपोर्ट्स वाइसरॉय को भिजवाई और रेकमेंड किया कि दोनों लीडर्स को गिरफ्तार करके एग्जाइल कर दिया जाए। वाइसरॉय ने गवर्नर एबिटसन की तजवीज़ मानते हुए लाला लाजपत राय और अजित सिंह को गिरफ्तार करके बर्मा के शहर मैंडेले एग्जाइल कर दिया। इन दोनों लीडर्स को मैंडेले भेजने के बाद तहरीक के कई और लीडर और सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिए गए और साथ ही पंजाब में जल्द से जुलूसों पर भी पाबंदी लगा दी गई। इसी दौरान इस तहरीक की गूंज ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी पहुंच चुकी थी। बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स में अपोजिशन मेंबर्स ने, खास तौर पर जो आयरिश मेंबर्स थे, उन्होंने इस बात पर बड़ा शोर मचाया कि लेबर हुकूमत के दौर में हिंदुस्तान से लीडर्स को मुल्क बदर किया गया है। आखिर 6 माह के बाद हुकूमत को लाला लाजपत राय और अजित सिंह की सजाएं वापस लेना पड़ी। ब्रिटिश सरकार ने मुतनाज़ कवानीन भी वापस ले लिए। अजित सिंह मैंडेले से वापस तो आए, लेकिन फिर बाहर चले गए और इसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी लड़ाई बाहर रहकर लड़ने का फैसला किया। वो 38 साल बाद मार्च 1947 में आज़ादी से चंद माह पहले वापस आए और जिस रात आज़ादी का ऐलान हुआ, 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात, उसी रात उनका इंतकाल हो गया। यहाँ रेजिस्टेंस के अगले हीरो का ताल्लुक भी अजित सिंह के ख़ानदान से था और ये नाम लायलपुर के उन रेबल्स में से है जो सबसे वेल नोन है। ये नाम भगत सिंह का है, जिसने नौजवानी में अपनी जान देकर एक ऐसी लेगेसी छोड़ी जिसे ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे बरे सगीर में सेलिब्रेट किया जाता है। भगत सिंह के वालिद का नाम किशन सिंह था, जो कि अजित सिंह के बड़े भाई थे। भगत सिंह के वालिद भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में अजित सिंह के साथ साथ थे और दोनों ही गदर मूवमेंट में खासे एक्टिव थे।
भगत सिंह की पैदाइश 27 सितंबर 1907 को हुई। सवान सिंह का कहना है कि जिस रोज भगत सिंह की पैदाइश हुई उसी दिन उसके वालिद को बेल पर रिहाई मिली। अजय सिंह जो मैंडले में कैद थे उनकी रिहाई का ऑर्डर आया और फिर उसके दूसरे चचा सवाम सिंह को भी लाहौर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। भगत सिंह ने अपनी इब्तदाई तालीम भी लायलपुर के उसी गांव 105 चक बंगा के प्राइमरी स्कूल में हासिल की। पॉलिटिकल अवेयरनेस और इनकलाबी ख्यालात भगत सिंह को विरसे में मिले थे। गदर मूवमेंट की गूंज और फिर जलियांवाला बाग सानहे ने पंजाब में सब कुछ बदल कर रख दिया था। भगत सिंह की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1928 में साइमन कमीशन के हिंदुस्तान आने पर एहतजाज हो रहा था और पुलिस के एक लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की जान चली गई। ये लाला लाजपत राय पगड़ी संभाल जटा तहरीक वाले ही थे। भगत सिंह इससे पहले भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। वो एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का हिस्सा था। इस तंजीम ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की ठान ली। इनका टारगेट ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एसएसपी जेम्स ए स्कॉट था जिसने ये लाठी चार्ज करवाया था, लेकिन गलती से निशाना लाहौर में एक 21 साल ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सैंडर्स बन गया। इस वाक़े के बाद भगत सिंह समेत इस तंजीम के नौजवान रूपोश हो गए। कई माह भगत सिंह और उसके साथी एट लार्ज रहे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापे मारती रही, लेकिन इसके बावजूद वो लाहौर से निकल गए। भगत सिंह का मकसद स्टेटस को के खिलाफ आवाज उठाना और इस आवाज को दूर दूर तक पहुंचाना था। उसके लिए उसे किसी डेयरिंग एक्ट की जरूरत थी। भगत सिंह और उसके साथियों ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को निशाना बनाने का फैसला किया। 8 अप्रैल 1929 को जब असेंबली का सेशन चल रहा था तो भगत सिंह ने अपने एक साथी के साथ मिलकर असेंबली की पब्लिक गैलरी से असेंबली चैम्बर के अंदर 2 होममेड बॉम्ब फेंके। अगरचे ये कोई बहुत लीथल बॉम्ब नहीं थे, लेकिन कुछ लोग वहां जख्मी हुए। इसके बाद भी भगत सिंह वहां से गया नहीं, बल्कि उसने खड़े होकर पब्लिक गैलरी से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, पैम्फलेट्स फेंके और अपनी गिरफ्तारी दे दी। ये हमला और गिरफ्तारी दोनों ही ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ा मसला बन गया। एक तो इस वाक़े को पब्लिसिटी बहुत मिली, दूसरा गिरफ्तारी का भी बहुत चर्चा हुआ। पहले भगत सिंह पर असेंबली हमले का केस चला जिसमें उसे 12 जून को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इस केस में भगत सिंह ने अपने एक्शंस का दिफा किया, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह पर जॉन सैंडर्स के कत्ल का केस भी खोल दिया और उसे दिल्ली जेल से मियांवाली जेल भिजवा दिया गया। ट्रायल के दौरान भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर हंगर स्ट्राइक कर दी, जिसमें उनका मुतालबा था कि हिंदुस्तानी कैदियों को बेहतर सहूलियात दी जाए। भगत सिंह अपने आप को एक सियासी कैदी कहता था। एक हाई प्रोफाइल केस और प्रेस की कवरेज होने की वजह से उनकी गिरफ्तारी और अब भूख हड़ताल एक पॉलिटिकल इशू बन चुका था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ने ही इन कैदियों की हड़ताल और एहतजाज की सपोर्ट कर दी। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह के खिलाफ ट्रायल की स्पीड तेज कर दी, जिसे लाहौर कंस्पिरेसी केस का नाम दिया गया था। भगत सिंह को लाहौर मुंतकिल किया गया और 10 जुलाई 1929 को यह केस शुरू हुआ। भगत सिंह का वजन भूख हड़ताल की वजह से बहुत गिर चुका था और हुकूमत उसे सियासी कैदी बनाने के लिए तैयार नहीं थी। इसी दौरान 13 सितंबर को 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद भगत सिंह के साथी जतेंद्र नाथ दास का इंतकाल हो गया। लोगों में अब इस ट्रायल के हवाले से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। 116 दिन बाद भगत सिंह ने अपने वालिद के कहने पर यह भूख हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन भगत सिंह ने इस ट्रायल का बायकॉट कर दिया। वायसराय लॉर्ड इरविन ने उस वक्त इस केस में एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाकर इस केस को चलाने का फैसला कर लिया। 7 अक्टूबर 1930 को इस ट्रिब्यूनल ने 300 सफ़हात की एक जजमेंट दी, जिसमें भगत सिंह को उसके साथियों सुखदेव और शिवाराम राजगुरु के साथ सजाए मौत सुना दी गई और 23 मार्च 1931 को इन तीनों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। उस वक्त भगत सिंह की उम्र सिर्फ 23 बरस थी। भगत सिंह ने जिस तरह आज़ादी के लिए जान दी उसे शहीद आज़म कहा गया। फैसलाबाद के 105 चक में जड़ामाला के नज़दीक भगत सिंह और उसके ख़ानदान की हवेली आज भी मौजूद है। उसकी फैमिली तो यहाँ नहीं रही, लेकिन इसका नाम इतना बड़ा हो गया कि अब भी ये गांव और शहर उसके नाम से जाना जाता है और आज भी भगत सिंह का नाम ना सिर्फ फैसलाबाद और पंजाब बल्कि पूरे बरे-सगीर में रेजिस्टेंस की अलामत है। एक और पॉलिटिकल मूवमेंट थी जिसका मरकज़ लायलपुर था और वो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट थी, जिसने 1920 की दहाई में पंजाब के पॉलिटिकल और सोशल फैब्रिक को हिला कर रख दिया था। इस तहरीक के एक बड़े नाम के साथ लायलपुर जुड़ा था और यह नाम
सुंदर सिंह लायलपुरी का था। गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट बेसिकली महंतों से सिख गुरुद्वारों का कंट्रोल वापस लेने के लिए थी, जिनको अंग्रेज सरकार अपॉइंट कर रही थी। महंत गुरुद्वारों के एडमिनिस्ट्रेटर थे। कई गुरुद्वारों के साथ ज़मीनें और इनकी इनकम जुड़ी हुई थी, इसलिए ये बहुत पावरफुल हो गए थे। ये मूवमेंट 1920 में शुरू हुई थी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इन महंतों के खिलाफ इस तहरीक को लीड किया। लायलपुर से सुंदर सिंह लायलपुरी, तेजा सिंह समुद्री, नरिंजन सिंह, दलीप सिंह, सेवा सिंह ऑफ ठीकरीवाला और हरचंद सिंह जैसे कई रहनुमा इस तहरीक के लीडर्स थे, जो लायलपुर या इसके आसपास के इलाकों से थे। सुंदर सिंह लायलपुरी इसके मेन लीडर थे। सुंदर सिंह लायलपुरी, जिन्हें मास्टर भी कहा जाता था, उनकी फैमिली अमृतसर से शेखुपुरा के नज़दीक मूव हुई थी और उन्हें उस वक्त जहाँ की चनाब कॉलोनी में ज़मीनें मिली थी। उन्होंने अपनी तालीम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मुकम्मल की। कुछ अरसा सरकारी मुलाजमत की, लेकिन अंग्रेज़ अफसरों से झगड़े के बाद छोड़ दी और अंग्रेज़ों के खिलाफ ये रेजिस्टेंस पर फोकस करने लगे। लायलपुर इनका बेस ऑफ ऑपरेशन था और इसीलिए इनका निक नेम लायलपुरी पड़ गया। लायलपुर से ही उन्होंने अकाली के नाम से एक अखबार निकाला और यह अखबार इस मूवमेंट को हाईलाइट करने के लिए ख़ास तौर पर निकाला गया था, जिसके एडिटर भी वो खुद थे। ये अखबार इस मूवमेंट का एक तरह से तर्जुमान भी था। ये अखबार मई 1920 में शाया होना शुरू हुआ। इस अखबार में अंग्रेज़ों से आज़ादी और उसके तरीक़ों पर लिखा जाता था। यह अखबार 1947 तक लायलपुर से निकलता रहा और इसी अखबार की वजह से गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट को अकाली मूवमेंट भी कहा जाता था। इस अखबार के इदारिये और हार्ड लाइन मुसलसल ब्रिटिश सरकार के लिए मसाइल पैदा करते रहे। सुंदर सिंह लायलपुरी ने लायलपुर से इससे पहले एक पंजाबी अखबार सुच्चा ढंढोरा भी निकाला था, जिसका फोकस भी आज़ादी की तहरीक ही था। खालसा भुजंगी सभा एक सिख यूथ तंजीम थी जो कि फैसलाबाद में ही इस्टेब्लिश हुई थी और ये भी सुंदर सिंह लायलपुरी ने ही शुरू की थी। ये सिख नौजवानों की तरबियत करती थी। फैसलाबाद या लायलपुर का खालसा हाई स्कूल भी 1908 में मास्टर सुंदर सिंह लायलपुरी ने शुरू किया था, जो बाद में खालसा कॉलेज बन गया। इसके पहले हेडमास्टर तारा सिंह थे और मशहूर भारतीय अदाकार पृथ्वीराज कपूर भी यहाँ से पढ़े हुए थे। उन्होंने इसके अलावा और भी कई स्कूल बनाए और इसी वजह से उन्हें मास्टर सुंदर सिंह लायलपुरी कहा जाता था। गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट में एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब फरवरी 1920 में ननकाना साहब में सिख अकालियों और महंतों के दरमियान होने वाली लड़ाई एक सानहे में बदल गई, जिसको ननकाना मैसेकर भी कहा जाता है। उस वक्त ननकाना साहब का महंत नारायण दास था, जिसके कहने पर वहां आने वाले अकाली सिखों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया। यहाँ होने वाली कैजुअल्टीज़ की तादाद कुछ अंदाजों के मुताबिक 300 और मुहतात अंदाजों के मुताबिक 130 से ज़्यादा थी। इन नौजवानों में से कई सुंदर सिंह लायलपुरी के स्टूडेंट्स थे। इस वाक़े और मूवमेंट ने पूरे हिंदुस्तान की तवज्जो हासिल कर ली। महात्मा गांधी ने इसे दूसरा जलियांवाला बाग करार दिया। इस तहरीक के बाद मुजाहरे जल्द ही पंजाब के दीगर इलाकों में भी फैल गए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल को बैन कर दिया गया। लायलपुर और इसके आसपास के इलाके इस तहरीक के गढ़ थे, वहाँ भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हुई। इससे पहले 1919 में सुंदर सिंह लायलपुरी को जलियांवाला बाग थाने के बाद भी गिरफ्तार कर लिया गया था और केस चलाकर सजाए मौत सुना दी गई थी। उस वक्त मोतीलाल नेहरू ने उनका केस लड़ा था, लेकिन बाद में यह सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी गई और जिसे बाद में 1.5 साल करके उन्हें 1200 रुपये जुर्माना किया गया और उसके बाद उनको रिहाई मिली। सुंदर सिंह लायलपुरी इसके बाद भी कई बार गिरफ्तार हुए। उनका इंतकाल 1969 में हुआ। अब सवाल यह है कि लायलपुर या फैसलाबाद से रेजिस्टेंस के ये नाम क्यों सामने आते रहे। अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ इन रेबल्स और इन तहरीकों में जहां मैंने इन इलाकों के माइंडसेट का जिक्र किया, वहीं ये बात भी बताना ज़रूरी है कि ये शहर अपने राइटर्स और शायरों की वजह से भी मशहूर है। यहाँ से पंजाबी और उर्दू लिटरेचर के बड़े नामों में कन्हैया लाल कपूर, नक्श लायलपुरी, नाज ख्यालवी और अफजल अहसन रंधावा जैसे नाम शामिल हैं। जब कैनाल कॉलोनी के बाद यह शहर बना तो पूरे पंजाब से यहाँ ज़िम्मेदार और काश्तकार आकर आबाद हुए। यूं ये शहर पंजाब की इन सोचों का एक मरकज़ भी बन गया था और यहाँ मुख्तलिफ फ़िक्री जहतों ने जन्म लेना शुरू किया जो एक तरह से पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट करती थी। ये इस शहर में रहने वालों की फ़िक्री और सियासी सोच थी जो कि इसके कल्चर में शामिल थी और कहीं ना कहीं ये भी ऐसे माइंडसेट और ऐसे किरदारों की बड़ी वजह रही। क्या आपको अब भी लगता है कि फैसलाबाद सिर्फ अपने फनकारों, हॉकी प्लेयर्स और टेक्सटाइल की वजह से मशहूर है या अपने इन इनकलाबियों की वजह से भी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।